आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इसमें दो फिगर बना रहे हैं। एक है करंट कैरिंग अ स्ट्रेट वायर। कितना बड़ा वायर है? इनफाइनाइट लेंथ का। इसके बगल में स्मूथ सरफेस है, उस पे चार्ज है, उस पे मास है, चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। टाइम के साथ देखा जा रहा है, टाइम के साथ ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में ही है। इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा। यहाँ देखा जाए वही चार्ज पार्टिकल है, वही मास है, लेकिन इसको वेलोसिटी दिया गया। किधर दिया गया? इधर। अब ये चार्ज पार्टिकल अपना पाथ डिविएट कर रहा है। इसका मतलब इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा। ये है फिगर फर्स्ट और ये है फिगर। वी कंसिडर a straight current carrying conductor which having current I. There is a charge particle which is kept in near current carrying wire and it is observed with time. In figure they are always in rest, so there is no any force acting on the charge particle. फिगर फर्स्ट में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो इसलिए चार्ज पार्टिकल जैसे रखा गया था वैसे ही रेस्ट में टाइम के साथ रहता है। लेकिन फिगर सेकंड में चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में नहीं रखा गया, मोशन दिया गया। तो देखा जा रहा है ये अपने पाथ से डिविएट कर गया। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। ये एक अलग तरीके का फोर्स है। इस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। जिस फील्ड के कारण ये फोर्स लगता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एक अलग तरीके का फील्ड है जो या जिसके कारण मैग्नेटिक फोर्स वैसे चार्ज पार्टिकल पे लगता है जो चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, रेस्ट में नहीं होता। इसको हम लिखते हैं in figure 1 there is an infinite current carrying a straight wire. There is an infinite current carrying a straight wire and a charge particle is kept in rest on the smooth surface. In figure 1 there is an infinite current carrying a straight wire and a charge particle is kept in rest on the smooth surface near the infinite current carrying wire, a straight wire. The charge particle is observed. The charge particle is observed with time. Then it is always in rest. The charge particle is observed with time, then it is always in rest. Hence
there is, hence there is no any, hence there is no any net force, hence there is no any net force is acting, hence there is no any net force is acting in figure 1. In figure 1. In figure 2. In figure 2. The charge particle is given. In figure second, the charge particle is given velocity, g. In figure second, the charge particle is given velocity g, as shown in figure. Then it is observed that the charge, the charge particle deviate, the charge particle deviate from its path. The charge particle deviates from its path. So there must be a net force. So there must be any net force acting on that moving charge particle, The deviation of the charge particle, conform the deviation of the charge particle, indicates that any net force, the deviation of the charge particle indicates that any net force is active. The deviation of the charge particle indicates that any net force is active. This is magnetic force. This force is acting. Due to any field. This force is acting due to any field that is known as the magnetic field. This force is acting due to any field that is known as the magnetic field. This is the different type of field. This is the different type of field. It is
denoted by, it is denoted by B. It is denoted by B. चलिए अब और आगे बढ़ते हैं. Calculation of the magnetic force acting on the moving charge particle. Calculation of the magnetic force. Calculation of the magnetic force acting on the moving charge particle. Calculation of the magnetic force on the moving charge particle. On the basis of many experiments, on the basis of many experiments, the magnetic force acting on the charge particle is given by on the basis of many experiments, the magnetic force acting on the charge particle is given Fb बराबर Q V क्रॉस B. मैग्नेटिक फोर्स क्या है? Q V क्रॉस B. और क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू ये है Q V B साइन थीटा. मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू है Q V B साइन थीटा. तो एफ भी है मैग्नेटिक फोर्स. Q है चार्ज, V है वेलोसिटी, B है मैग्नेटिक फील्ड, D है मैग्नेटिक फील्ड. अब देखा जाए क्या यूनिट होगा. यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. चलिए F बराबर क्या होता है? Q V B साइन थीटा. B बराबर क्या हो गया? F Y Q V साइन थीटा. चलिए B का अब देखा जाए. न्यूटन पर कूलम पर मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड. साइन थीटा का कुछ नहीं, तो ये आ गया न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर. या इसी को बोलते हैं टेस्ला, या इसी को बोलते हैं वेबर पर मीटर. तो यही है यूनिट, न्यूटन सेकंड पर कूलम पर मीटर. या उसी को बोलते हैं टेस्ला, या उसी को बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर. यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं. D बराबर एफ वाई क्यू भी साइन थीटा. F का डायमेंशन M L T माइनस 2. चार्ज का AT, वेलोसिटी का LT माइनस. चलिए क्या हो गया? T से T कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया M. L से L भी कैंसिल, T माइनस 2 A माइनस 1.
ये हो गया डायमेंशन और ये हो गया यूनिट। अब आइए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या पढ़ने जा रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग जनरली दो डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आउटवर्ड नॉर्मल। अगर एक एरो को आगे से देखा जाए, आदमी किधर से देख रहा है? आगे से, तो आपको दिखाई पड़ेगा एक डॉट। आपको क्या दिखाई पड़ेगा? यही एरो है, एरो के आगे वाला पार्ट को देखिए, आपको ये डॉट दिखाई पड़ेगा। तो यही लग रहा है कि ये बोर्ड के प्लेन से डॉट मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है। यही है आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द। दूसरा होता है इनवर्ड नॉर्मल। इनवर्ड नॉर्मल अगर ऐसे देखा जाए, किधर से देखा जाए? एरो को देख रहे हैं किधर से? पीछे से। एरो को किधर से देख रहे हैं? पीछे। क्या दिखेगा? क्रॉस। नहीं, आपको क्या लग रहा है? जो एरो है वो दूर जा रहा है आपसे, अंदर की तरफ। इसी को बोलते हैं इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर। आपको लगेगा कि आपसे एरो दूर जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं इनवर्ड नॉर्मल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब डेविएशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। डेविएशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल किधर डिविएट कर रहा है? चलिए ये देखा जाए, ये रीजन दिखाया गया। रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर। अब एक चार्ज पार्टिकल है, देखा जाए किधर? चार्ज पार्टिकल इधर है, चार्ज है प्लस मास है। इसको दिया गया वेलोसिटी इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो देख सकते हैं फोर्स क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी क्रॉस डी। भी किधर है? वेलोसिटी देख सकते हैं। बी किधर है? अंदर, तो भी को बी की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा आएगा ऊपर। यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा? इधर। बी क्रॉस बी करेंगे तो भी की तरफ हाथ रखे, बी की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा आएगा इधर। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा? डिविएट कर जाएगा। किधर डिविएट कर जाएगा? तो यहां से अपने इनिशियल पाथ से इस तरफ ये बेंड कर जाएगा। बी में आ जाइए। फील्ड को आप उल्टा कर दे रहे हैं, फील्ड को डॉट कर दे रहा है, मतलब बाहर से तरफ। चलिए अब चार्ज पार्टिकल को क्या कर दे रहा है? इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी किधर दे रहा है? इधर। इधर डिविएट करेगा तो देख लीजिए F बराबर Q। चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे? V क्रॉस। तो चार्ज पे, चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे वो निगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो V क्रॉस V। V है इधर
अब बी है बाहर की तरफ, तो भी क्रॉस बी आ जाएगा नीचे। बी है सामने राइट और बी है बाहर, तो बी क्रॉस बी नीचे। अब इसको माइनस से गुना करेंगे तो ऊपर, माइनस से गुना करेंगे तो ऊपर, तो डिविएट किधर करेगा, तो चार्ज पार्टिकल किधर डिविएट करेगा, तो देख सकता। तो चार्ज पार्टिकल पे जिधर फोर्स लगेगा, चार्ज पार्टिकल पे जिधर फोर्स लगेगा, तो उधर चार्ज पार्टिकल क्या होगा, डिविएट करेगा। तो ये है डिविएशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आगे बढ़ रहा है कंपेरिजन, कंपेरिजन ऑफ द फील्ड with comparison of the magnetic field with other field. Comparison of the magnetic field with other field. दूसरे फील्ड से कंपेयर करवा रहा है। पहला देखिए कौन सा, पहला है ग्रेविटेशनल फील्ड, पहला है ग्रेविटेशनल फील्ड। चलिए देखिए कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। इधर है फील्ड नीचे की तरफ, कौन सा फील्ड है, ग्रेविटेशनल। अब एक है चार्ज पार्टिकल, ये है वेलोसिटी, मास भी है, फोर्स किधर लगेगा, mg नीचे, तो ये क्या होगा, अपने पाथ से डिविएट कर जाएगा। जब ये यहां निकलेगा तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पहले है वेलोसिटी v नॉट, अब हो गया वेलोसिटी v, तो v पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो यहां जो देखा जाए जो v हो जाएगा वो पहले से बड़ा हो जाएगा, वेलोसिटी यानी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नीचे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां देखा जाए फील्ड है ऐसे, ये है चार्ज, ये है मास, वेलोसिटी दिया गया इधर, अब इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगा इधर, तो ये अब अपना पाथ डिविएट कर लेगा, ये आ जाएगा। अब वेलोसिटी बाद में हो गया v, पहले था v नॉट, पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, तो पहले के रिस्पेक्ट में फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी बढ़े, पहले के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, फोर्स लगने के कारण वेलोसिटी बढ़ गया। तीसरा है, तीसरा आ जाइए मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड। चलिए देखिए कैसे, ये है ऐसे, ये है ऐसे, फील्ड मान लीजिए किधर है, बाहर के तरफ, वेलोसिटी दिया गया ऐसे, ये है चार्ज पार्टिकल, चार्ज है q, मास है m, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, फोर्स बोलिए q v क्रॉस v, v है किधर, बाहर, v है देख सकते हैं इधर राइट, और b है बाहर, तो v क्रॉस v नीचे, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ये है मैग्नेटिक फोर्स,
तो इसका डिविएशन हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से डिविएट कर जाएगा। जब ये यहाँ आ जाएगा तो इसका वेलोसिटी पहले v था, पहले v0 था, अब आ जाएगा v। यहाँ भी चार्ज पार्टिकल डिविएट कर गया, यहाँ भी चार्ज पार्टिकल डिविएट कर गया। वेलोसिटी में क्या रिलेशन, बाद में वेलोसिटी v, पहले वेलोसिटी v0, दोनों में क्या रिलेशन, तो दोनों हो गया इक्वल। दोनों में क्या रिलेशन, तो दोनों हो गया इक्वल। यही एक पिकुलियर चीज मिला, यही एक पिकुलियर चीज मिला जो बाकी दोनों फील्ड से इसको अलग करता है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में भी वेलोसिटी बढ़ जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वेलोसिटी बढ़ जाता था, लेकिन इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी नहीं बदल रहा, मैग्नीट्यूड वही है। चलिए अब आइए देखिए इसी को कहाँ से आता है ऐसे, नहीं इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्यों नहीं बदलता। चलिए मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं, ये होता है Q V क्रॉस B। अगर एक्सीलरेशन, चलो बोलो सर बी यानी बोल्ट्जमान कांस्टेंट होगा। बी बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहाँ से आ गया बदमाश, कैपिटल बी है मैग्नेटिक फील्ड, कैपिटल बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। चलो इस चैप्टर में बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहाँ से दिख गया तुमको, नहीं मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में या करंट वाले चैप्टर में बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहाँ से दिखेगा, वो तो होता है कहाँ, मॉडर्न फिजिक्स में या हीट में। चलो अब एक्सीलरेशन बराबर फोर्स बटा मास, ये है एक्सीलरेशन, ये है वेलोसिटी और ये है v। यहां देखा जाए इस दोनों को क्रॉस करवा रहे हैं तो ये मिल रहा है, तो यहाँ क्या होगा हेयर, ये जो होगा a इज परपेंडिकुलर टू b, जो एक्सीलरेशन होगा वो वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर होगा एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू b, a इज परपेंडिकुलर टू b, तो a डॉट भी कितना, a इज परपेंडिकुलर टू a डॉट b का वैल्यू क्या आ गया, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट कराने के बाद जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, वेक्टर बनता है जो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ एक्सीलरेशन वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर है और एक्सीलरेशन मैग्नेटिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेलोसिटी क्यों नहीं बढ़ता है तो इसके बारे में देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ गुना mv², इसको लिख सकते हैं v² को v डॉट v, v² को क्या लिख सकते हैं, v डॉट v। चलिए अब डिफरेंशिएट करने जा रहा है, किसको डिफरेंशिएट करने जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी को, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। चलिए क्या मिलेगा, कांस्टेंट को बाहर, एक v को रहने दीजिए, एक v का डिफरेंशिएशन है, अब पहले v को कर दीजिए तो ये, बाद वाला v को रहने दीजिए तो ये आ गया m/2, ये आ गया 2v डॉट a, क्या कैंसिल हो गया, तो ये आ गया d/dt काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया mv डॉट a और इसका वैल्यू कितना हो गया, किसका डिफरेंशिएशन 0 मिलता है, कांस्टेंट का। तो यहां से क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², क्या मिल गया, कांस्टेंट। अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा तो क्या कांस्टेंट होगा, मास कांस्टेंट होगा कि स्पीड, तो मास तो कांस्टेंट होता ही है, तो यहाँ से स्पीड भी कांस्टेंट होगा, यानी यहाँ से लिख सकते हैं v1 बराबर v2। तो मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन बदलता है
लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो याद रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या बदलता है, डायरेक्शन। चलो यहां तक आया समझ में? चलो और आगे ले चल रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ द calculation of the magnetic force, calculation of the magnetic force acting on the current carrying calculation of the magnetic force acting on the current carrying wires. Calculation of the magnetic force acting on the current carrying wire. चलिए देखिए, यही है मैग्नेटिक फील्ड। क्या देख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। यहाँ पे क्या है? एक वायर है। क्या दिख रहा है? एक वायर। अब इसमें क्या हो रहा है? वायर ऐसा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। वायर का लेंथ कितना है? एल। वायर का लेंथ कितना? एल। अब इस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स कितना? आई एल क्रॉस बी, एफ बी। आई का मैग्नीट्यूड, एल का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। एफ क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। आई क्या है? करंट। एल क्या है? लेंथ। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। बी है मैग्नेटिक। एफ बराबर है आई एल क्रॉस बी। एफ बराबर है आई एल क्रॉस बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, in case of uniform magnetic field, in case of uniform magnetic field, फोर्स क्या होता है? आई एल क्रॉस बी। एफ क्या होता है? आई एल क्रॉस बी। फोर्स से होता है। एफ भी होता है आई एल बी साइन थीटा। तो यही फोर्स यूज करेंगे। और इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर फील्ड कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म। इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब हर जगह फील्ड का वैल्यू क्या है? सेम है। ये अलग अलग है। यूनिफॉर्म में हर जगह फील्ड का वैल्यू अलग अलग है। इसमें क्या है?
यूनिफॉर्म में हर जगह सेम है फील्ड का वैल्यू, और नॉन यूनिफॉर्म में हर जगह क्या है, अलग है। अब देखिए इसमें छोटा सा फोर्स लिखते हैं, आई डीएल क्रॉस बी। क्या लिखते हैं इसमें, छोटा सा फोर्स लिखते हैं, डीएफ बराबर आई डीएल क्रॉस बी। इसी को इंटीग्रेट करते हैं, ये हो गया आई डीएल क्रॉस बी। इसी को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स निकालेंगे तो उसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए अब और आइए देखिए, एप्लीकेशन चलते हैं। कहाँ चलते हैं, एप्लीकेशन। किसका एप्लीकेशन, तो जो मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहा है इसी का एप्लीकेशन। चलिए पहला, ये है मैग्नेटिक फील्ड। किधर है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर है, और एक लेंथ है। करंट किधर चल रहा है, तो करंट इधर अंदर चल रहा है। चलिए बतलाइए इसमें फोर्स कितना, फोर्स का वैल्यू आई एल क्रॉस बी। चलिए और लिखेंगे तो ये आ गया आई एल बी। साइन कितना, एल है राइट, बी है अंदर, तो 90 डिग्री हो गया। फोर्स का वैल्यू आई एल बी। डायरेक्शन क्या हो गया, एल के तरफ हाथ रखिए, बी की तरफ घुमाइए, क्या आ गया, ऊपर। डायरेक्शन किधर आ गया, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। किस पे परपेंडिकुलर, एल पे और बी पे। तो फोर्स का वैल्यू आई एल। दूसरा एग्जांपल ले चलते हैं। सर डायरेक्शन कैसे लेते हैं? करो ना, याद देखो, एल क्रॉस बी है, क्या है, एल क्रॉस बी। एल के डायरेक्शन में हाथ रखो और बी की तरफ घुमा दो, राइट हैंडेड रूल से। नहीं, चलो डायरेक्शन अगर सीखना चाहते हो तो देख लो, सीख लो डिटेल, जिसको कोई दिक्कत है सीख सकते हो। नहीं, नोट में हम देखो लिख दे रहे, नोट में। चलो सीखो। वेक्टर ये इधर है, दिख रहा है, ये बी इधर है। अब डायरेक्शन बतला दो, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। चलो कौन बतलाएगा, राइट हैंड को ए की तरफ रखो, तो रख दिए, बी की तरफ घुमाओ, बी की तरफ घुमाओ इसको, तो ये हाथ पूरा बंद हो जाना चाहिए। ए की तरफ रखो, बी की तरफ घुमाओ, अंगूठा किधर है, इस दोनों के प्लेन पे परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। तो इसका डायरेक्शन आ गया ऐसा, मतलब आ गया आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर। कैसा आ गया, आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो कुछ ऐसा आ गया, आया समझ में डायरेक्शन। अब चलो दूसरा एग्जाम्पल चलता है। क्या चलता है, दूसरा एग्जाम्पल। नोट को यही खत्म करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, चलिए ऐसा है, ये स्क्वायर है, करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। इस स्क्वायर लूप पे, इस स्क्वायर लूप पे हमसे फोर्स पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे फोर्स। सॉल्यूशन देखो, चलो यही स्क्वायर लूप, फोर्स देख लो,
मैग्नेटिक फील्ड किधर है, करंट किधर है, तो देखो फोर्स का डायरेक्शन देख लो, सबसे ऊपर वाले वायर पे, इस पे क्या है, लेंथ इधर है, बी किधर है अंदर, एल क्रॉस बी, एल के डायरेक्शन में हाथ रखेंगे, बी की तरफ घुमाएंगे, इस पे फोर्स आ गया, इस पे फोर्स आ गया इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों कैंसिल कर देगा, इस पे फोर्स इधर और इस पे फोर्स इधर, चलो देखो तो कौन कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल इसका और ये कैंसिल, नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स कितना आ गया, 0। एग्जाम्पल अब तीसरा, एग्जाम्पल कौन सा, चलो तीसरा एप्लीकेशन में एग्जाम्पल में देखो, सर्किल है, क्या है, सर्किल, करंट देख सकते हैं, रेडियस भी समझ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी देख, फोर्स निकालना है, क्या निकालना, फोर्स निकालना। तो आइए देखिए इसमें एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं नोट में, इन क्लोज लूप, जहां से चले वहीं पहुंच गए, एल कितना, 0, क्लोज लूप में एल इक्विवेलेंट 0, फोर्स क्या लग जाएगा, आई एल इक्विवेलेंट क्रॉस बी, ये आ गया फोर्स, आई एल इक्विवेलेंट बी, तो ये आ जाएगा फोर्स। अगर एल इक्विवेलेंट 0, अगर एल इक्विवेलेंट 0 है तो फोर्स कितना आ जाएगा,